when there is real relative motion or intention of motion. Punchlines are very important. First point, when there is a real motion or intention of motion. Intention मतलब move नहीं हो रहा है, but move करने चाह रहा है. Okay. Hello. Yes, sir. Example. Suppose this is a wall and this is a wall. There's a ladder over here. This is the ladder. The ladder will have 2 points of contact. Contact point A, contact point B. बराबर क्या? Yes. Where is point B intending to slip? Towards the right or towards the left? Point B. Towards the right. Towards the right. ऐसे slip होने की. सबको मालूम है यार, थोड़ा दिमाग तो है ही ना सब लोगों में. Intention इधर है. Friction will act opposite to the direction of intention of motion. So can you tell me? Friction इसको बचाएगा. Friction बोलेगा भाई आपको जाने नहीं दूंगा. तो friction इधर act करेगा. Yes. Can I say this is F at point B? Friction at point B. बराबर है क्या? अच्छा, point A कहाँ फिसलने की कोशिश कर रहा है? नीचे. Downwards. अरे भाई ये ऐसे रखा है ना, ऐसे रखा है तो ये स्लिप होगा ना नीचे, ये इधर जाएगा तो ये डाउनवर्ड है, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा इसका? Upward. This is FA. Do you understand? Hello. Yes. Friction acts opposite to the intention of motion. Intention of motion जिस तरफ है उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, because friction is always trying to kill that motion. What is the rule? Friction tries to kill relative motion. Are you getting it? बोलेगा आपको मैं मूव नहीं करने दूंगा. Getting it? Or I can say one more concept. Or this is the body. This is the mass. Can I say body is going here with a speed of 2 meters per second? So with respect to ground, where is it relatively moving, towards the right or towards the left? Right. Towards the right. So can I say this is the direction of relative motion? Baba bolo. Yes. Friction will act opposite to the direction of relative motion. This will be the value of friction. बराबर क्या? Yes. अच्छा, this is offered. This friction is offered by whom? On whom? By the ground on body. Very good. By ground on body. मतलब एक्चुअली क्या हुआ, मतलब ग्राउंड बॉडी को क्या बोलेगा, भाई मेरी तरह बन जा. मेरी तरह बन जा मतलब क्या? मैं भी रेस्ट पर हूं, तू भी रेस्ट पर रह जा. I'm not moving. You also don't move. You be like me. We should not create rift between each other. We should not have any relative motion. मैं रुका हुआ हूं, आप भी रुको. Getting it? तो ये ग्राउंड का जो फ्रिक्शन आया है वो ये बॉडी को क्या बोल रहा है, भाई मैं भी रुका हुआ हूं, तू भी रुक जा. तो मैं उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं ताकि आप रुक जाओ. Are you getting it? Yes. Next, third point, which is very important. It always exists in pairs. What मतलब क्या? It will form an action. बाबा बोलो. Reaction pair. Reaction pair. सुनो, हाँ मेरी बात सुनो. ये फ्रिक्शन जो एक दिख रहा था ना, एक पिंक कलर का फ्रिक्शन दिख रहा है, मैंने बनाया पिंक. Yes, sir. वो एक नहीं है. थर्ड पॉइंट क्या बोला? इट विल एग्जिस्ट इन पेयर्स.
मतलब क्या, अगर मैं ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ना यहाँ पर, तो इसका पैर इधर भी एक्ट करेगा. दिस इज ऑफर्ड बाय whom, on whom? Ground on body. By body On ground. on ground. देखो एक्चुअली कहानी क्या है, कहानी क्या है कि ग्राउंड के हिसाब से बॉडी चल रहा है. सुनो, हाँ फिर से सुनो बेटा, इधर सुनो. ये बॉडी है, ये ग्राउंड है. गेटिंग इट? बॉडी है, ग्राउंड है, ये बॉडी चल रही है ऐसे. ग्राउंड क्या बोलेगा, रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है, मेरी तरह बन जा, मैं भी रेस्ट पर, तू भी रेस्ट पर. तो मैं लगा दूं उल्टा फोर्स. गेटिंग इट? फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा, बराबर है क्या? अच्छा, ये फ्रिक्शन की कहानी क्या है, ये फ्रिक्शन क्या है, किसके, कौन दे रहा है किसको? बॉडी दे रहा है ग्राउंड को. बॉडी दे रहा है ग्राउंड को. बॉडी क्या बोल रहा है ग्राउंड को, भाई मैं जा रहा हूं ना, तू भी साथ में चल. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yeah. Yes. भाई वी वांट टू किल रिलेटिव मोशन. आप क्यों बोल रहे हो मुझे रुकने के लिए, आप भी चलो मेरे साथ. मतलब बोथ ऑफ देम आर वांटिंग टू हैपन, देयर कंडीशन हैपन, and they are applying force, okay, to maintain that condition. मतलब क्या, ग्राउंड बोलेगा बॉडी को भाई रुक जा, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. बॉडी बोलेगा ग्राउंड को भाई मेरे साथ में चल, मैं तो जा रहा हूँ, जाना है तो चल, मैं फोर्स लगा रहा हूँ तेरे लिए. गेटिंग इट और नॉट? So Yes. relative to each other, they are trying to kill the relative motion. मतलब दो दोस्त है यार, राइट? एक दोस्त को सपोज पार्टी में जाना है, तो दूसरे दोस्त को क्या बोलेगा, भाई मेरे साथ चल. ओके, दूसरा दोस्त क्या बोलेगा, भाई तू भी मत जा, मैं भी मत जा, तो हम लोग घर में पार्टी करते हैं. आर यू गेटिंग इट? Yes. समझ में आया? तो ये दोनों के बीच में रिफ्ट चल रहा है, मगर दोनों, ओके, मतलब बोथ आर ट्राइंग टू मेंटेन देयर कंडीशन, and because of that friction is exerting. Are you understanding what's happening, baba? Hello. आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 4 पर आता है. Listen to me, yeah? Just pay attention, please. Whenever there is intention of motion, static friction will act. And whenever there is real relative motion, kinetic friction will act. Please note this point. Okay, this point is very, very important. I'm going to explain this whole right now. देखो, हाँ मेरी बात सुनो फटाफट. Please pay attention to it. I'm explaining the 4th point. Suppose एक बॉडी है, सुनो हाँ, इधर बात सुनो. इधर है, I'm applying 1 Newton. How many Newtons am I applying? 1. But the body is not moving. आपके घर में बड़ा बड़ा फर्नीचर होता है, सबके घर में बड़ा कबर्ड है. आप लगाओ 1 न्यूटन, एक उंगली से धक्का मारो, वो मूव होने वाला है क्या? नहीं. No. और आपने धक्का तो मारा, आपने फोर्स तो लगाया, तो फोर्स का मतलब क्या बनता है, फोर्स हैज टू रिजल्ट इन चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ना बाबा. हेलो, Yeah. Yes. फोर्स है तो मोमेंटम चेंज करना है, उसको अपना हालत को चेंज करना पड़ेगा. बट हालत चेंज
नहीं हो रहा है। आपने वो कबर्ड को धक्का मारा, ऐसे उंगली से धक्का मारा, 1 न्यूटन ले, 1 न्यूटन, वो चलेगा नहीं, बोलेगा चल रहा तो नहीं है, मतलब okay, that means there is an invisible force which is exerting in the opposite direction, which is making the body net force how much? 0, which is tending the body to be at rest. Yes. Are you catching my words, man? Hello. Yeah. इसका मतलब यहाँ से एक और एक फोर्स आया. Which force is this force? Friction, which is how much? 1 Newton. Can I say body is at rest? How much is the net force acting on the body? 0. 0. And how much is the net acceleration acting on the body? 0. And this friction, इस friction को बोलते हैं static friction. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Static friction. Static friction. जो बॉडी को रेस्ट में मेंटेन करने की कोशिश करता है. मेरी बात सुनो. Okay, it is called as static friction. Please try to pay attention, everyone. Okay, Siddharth, switch on your camera. Donita share. क्या हो रहा है? Video camera. Come on, please. So acceleration net का unit should be meter per second square. हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सॉरी. हाँ, ठीक है. ओके, लिसन टू मी. अब आगे बढ़ते हैं. हमने वही सिनेरियो आगे बढ़ाते हैं. वही बॉडी है. आपने लगाया 4 न्यूटन. आपने 4 उंगली से फोर्स लगाया कबर्ड को, बड़े कबर्ड को. ठीक है, बराबर है क्या? तब भी बॉडी मूव नहीं हो रहा है, तब भी बॉडी रेस्ट पर है. इसका मतलब क्या? फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 Newton opposite direction. Friction should be, which category is it right now also? Static. नेट फोर्स कितना है बॉडी के ऊपर? 0. नेट एक्सेलरेशन भी कितना बनेगा? Same. 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सुनो 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 बाबा. आप बोलेगा अच्छा ऐसे है, चलो उल्टे डायरेक्शन में 8 न्यूटन लगाते हैं. आपने कबर्ड को पीछे से धक्का मारा. पीछे से धक्का मार के देखते हैं मूव होता है क्या? तब भी बॉडी मूव नहीं हो रहा. फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन सेम रखा कि बदल दिया? Change कर दो. बदल दिया. फ्रिक्शन ने डायरेक्शन को बदल दिया. फ्रिक्शन बोलेगा अच्छा ओके, यू आर डूइंग स्मार्टनेस विद मी, आई एम आल्सो वेरी स्मार्ट. बोलेगा 8 न्यूटन मेरी तरफ से ले लो. कौन सा कैटेगरी, कौन सा फ्रिक्शन है बताइए? Static. Static friction. कैन आई से एफ नेट 0 है. एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बोलो भाई, Yes. क्या ऐसे नहीं लग रहा है कि फ्रिक्शन इतना स्मार्ट है? इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर. Yes. Yeah. This is very important point, that static friction is auto adjusting. Important concept है ये. आप 1 देंगे ये 1 देगा, 2 देंगे ये 2 देगा. आप डायरेक्शन चेंज करेंगे वो भी डायरेक्शन चेंज करेगा, ताकि वो बॉडी को रेस्ट पर रख पाए. गेटिंग इट? इसलिए एक पूरा लेक्चर लेना पड़ रहा है फ्रिक्शन के ऊपर. आर यू गेटिंग इट? वो अपना नॉर्मल रिएक्शन जैसे नहीं है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड द बॉडी. एकदम स्मार्ट है. 1 देंगे 1, 2 देंगे 2, 5 देगा 5, 8 देगा, डायरेक्शन चेंज करके वो भी 8 देगा, ताकि बॉडी रेस्ट पर रह पाए. लुक ओवर हियर प्लीज. आगे बढ़ते हैं. लुक ओवर हियर. आप दे रहे हो 10 न्यूटन. आपको फील हो रहा है बस अभी अभी थोड़ा सी और लगाना पड़ रहा है, बस अभी मूव होने वाला है. ऐसे होता है ना कभी कभी, बस और थोड़ा लगाओ यार, अभी मूव होने के कतार पे है. Yes or no? It is on the verge of its motion. It is on the verge of moving. Yes or no? It is not moving. It is still at rest. बट अगर मैं 10 की जगह 10.000000000001 दे दूं तो वो चलना शुरू कर देगा. अभी चल रहा नहीं है. Can I say friction कितना है?
अभी भी 10 फ्रिक्शन Newton. कितना ये चल रहा है 10 ही है, फ्रिक्शन इज 10. विच कैटेगरी? Static. Static. इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब इट इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इट कैन ऑफर. तो बोलेगा भाई अभी बस, मैं तो कब से लड़ रहा हूं ना इससे, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 8 का 8, 10 पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू, मैं कितना मैक्सिमम जोर लगा सकता हूं? 10 न्यूटन. यस और नो? इसको डिनोट करते हैं एफ एस मैक्सिमम से. कितना है एफ एस मैक्सिमम? 10 Newton. 10 न्यूटन. सुनो सुनो सुनो, how much is the net force right now? 0. How much is the net acceleration also? 0. बॉडी मूव नहीं हो रहा है, बट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ इट्स मोशन. इट इज ऑन द वर्ज ऑफ इट्स मोशन. इट इज ऑन द वर्ज ऑफ इट्स मोशन. तो लड़ रहा कब तक है? एफ एस Max. maximum. So can I say static friction is auto adjusting till? FS max. वेरी गुड वेरी गुड, यही मांगता है, एफ एस मैक्सिमम तक लड़ता रहेगा. ओके, टिल एफ एस मैक्सिमम. 10 तक वो लड़ता रहेगा. 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 10 का 10. अब अगर आपने यहां पर $11 न्यूटन लगा दिया, तो कैन आई से ये रिलेटिव मोशन करने लगेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कैन आई से मूवमेंट करने लगेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. रेस्ट पर थोड़ी है भाई. हेलो, ये तो रेस्ट पर है. और ये रिलेटिव मोशन करने लगा. कौन से हालत में आ गया? स्टैटिक के काइनेटिक? Kinetic. भी हालत है ना पहले, 1 2 3 4 जो हालत बताया मैंने, सब स्टैटिक कैटेगरी है. हेलो बाबा, दिस इज स्टैटिक Yes. कैटेगरी. स्टैटिक कैटेगरी, स्टैटिक कैटेगरी, स्टैटिक कैटेगरी. बोलो भाई, दिस इज विच कैटेगरी? Kinetic. Static. This is not static. Yeah. This Kinetic, is kinetic category. ना. हाँ, before one sir. It is kinetic category. Kinetic category में friction का रूल चेंज हो जाएगा. एफएस मैक्सिमम क्या बोलेगा? मैं तो लड़ा ना, मेरा काम तो खत्म हो गया, अब अंदर के दूसरे बॉडी गार्ड आएंगे. दिस बॉडी गार्ड विच इज देयर is called as kinetic friction, which is different from, its value will be different from static friction. इसका वैल्यू रहेगा Fk. इसका सिंबल क्या? Fk. इस सब सिंबल का क्या था? नाम था Fs. इसका नाम क्या था? Fs. इसका नाम क्या था? Fs. इसका नाम क्या था? Fs मैक्सिमम. हेलो, Yes. इसका वैल्यू कितना रहेगा? Fk. FK. Always remember Fk is lesser than Fs maximum. Fs maximum कितना था? 10 Newton. 10 Newton. Fk will be lesser than, suppose the value is, suppose this value is 8 Newton. It is lesser than Fs maximum. याद रखना always. Okay. And it is constant. It is not adjusting. मतलब आप 11 दो कि 15 दो, ये रेट मोशन आएगा. ये हमेशा कितना देने वाला है? ये 8 ही देगा. अच्छा, कोई बता सकता है इधर काइनेटिक एफ नेट कितना है? 3 Newton. एक्सेलरेशन कितना रहेगा? नेट फोर्स अपॉन Total mass. अरे भाई, Total नेट mass. फोर्स अपॉन टोटल मास. सपोज मास 1 kg है, तो 3 3 meter per second square. यहाँ पे एफ नेट कितना है? हेलो, एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 10 मीटर पर सेकंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो,
Yes, sir. यू नीड टू कॉपी है, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा, ये सब पूरा एक्सप्लेनेटरी बराबर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं एकदम। सब स्टेजेस वो खाली लिख देते हैं, एफए लेसर देन एफएस, ऐसे कुछ होने वाला कंडीशन नहीं समझाएगा कोई भी। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा ना? हाँ, हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। जब तक रिलेटिव मोशन हो रहा है, एफ के का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। हेलो, यस सर। अच्छा, एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला इज व्हाट? एफ एस मैक्सिमम इज म्यू एस इंटू एन। Mu s is called as coefficient of static friction. And what does n stand for? Normal रिएक्शन। Normal reaction. Value याद रखना है। Fs maximum ढूंढना है तो फॉर्मूला रहेगा mu s into n. What is mu s? Mu s will be given in the question. इसको बोलते हैं coefficient of static friction. There's a value depending on the surface. एक रफ रोड है उसका mu s ज्यादा होगा, एक स्मूथ सरफेस है उसका mu s कम होगा। बारिश आ गया रास्ते पर, mu s का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तेल गिर गया रास्ते पर, mu s का वैल्यू और कम हो जाएगा। रोड रफ कर दिया है, हमारे आजकल के जो रोड्स है उसका mu s बहुत ज्यादा है। गेटिंग इट? यू डिग द ग्राउंड, mu s ज्यादा हो जाएगा। पत्थर रहेगा, mu s ज्यादा हो जाएगा। तो mu s ज्यादा भी अच्छा नहीं है, mu s कम भी अच्छा नहीं है। mu s कम क्यों अच्छा नहीं है? फिसल जाएंगे आप, स्किड हो जाएगी गाड़ी। mu s ज्यादा क्यों अच्छा नहीं है? इट विल कॉज वेयर एंड टेयर ऑफ योर न्यू टायर्स। Tires. भाई जूते घस जाएंगे, हैं, चप्पल घस जाएंगे, यस और नो? Yes. So mu s should be moderate. You understanding what's happening? fs maximum का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलो। म्यू एस इनटू एन। mu s into n. What does the n stand for? नॉर्मल Normal reaction. Normal. fk will be mu k into n. What does mu s stand for? Coefficient of static friction. वैसे mu k क्या रहेगा? Coefficient of kinetic Coefficient friction. of kinetic friction. यार होशियार हो गए आप लोग। Kinetic friction, yes or no? And always remember, mu k is always lesser than mu s. Therefore, fs will always be greater than fk. बराबर है ना? mu k कम है तो fk कम रहेगा, fk कम रहेगा तो fs ज्यादा रहेगा हमेशा। fs maximum ज्यादा रहेगा, fs नहीं, fs maximum ज्यादा रहेगा, yes or no? Yes. fs maximum is always greater than fk. Why sir? Why? Because mu s is always greater than mu k. And these values will be given in the numerical. मतलब जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आज ही करेंगे, तो आपको समझ में आएगा, दिया रहेगा वैल्यू। ठीक है भाई? हाँ सर। Yes. I hope all the theory people are also attending. Look over here. Now we'll deal with the question so that you all can get the understanding part. Okay? Look over here. Suppose there is a body of mass 1 kilogram. Please. You're applying a force. Look carefully, beta, look carefully. Mu s is given as 0.5, mu k is given as 0.4. ठीक है, ये सब दिया हुआ, all given. Listen to me. और f आप बढ़ा रहे हो। सबसे पहले स्टेप रहेगा, लुक ओवर हियर, स्टेप 1 विल बी कैलकुलेट एनी डैम सम इफ यू पिक अप अ फ्रिक्शन। सबसे पहले आपको कैलकुलेट fs मैक्सिमम एंड fk निकालना पड़ेगा। व्हाट इज fs मैक्सिमम का फॉर्मूला? mu s into n. Mu k. दिस इज mu k into n, बराबर है ना?
बिकॉज मालूम तो होना चाहिए ना कहां तक फ्रिक्शन लड़ेगा और कहां तक वो कैटेगरी चेंज होगी. ओके, व्हाट इज n इक्वल टू बेटा? अरे n क्या Normal रहेगा reaction. भाई? n will become equal to The weight of the mg. yes or no? n is mg. yes. नेट फोर्स 0 है ना वर्टिकल डायरेक्शन में. हेलो हेलो. Yes. n is equal to mg. what is m? 1. what is g? 10. तो ये हो गया 10 न्यूटन. डू यू एग्री विद मी? Yes. तो म्यू एस कितना है? 0.5 इंटू एन कितना मिला? 10. तो ये कितना होगा? 5 100. न्यूटन. म्यू के कितना है? 0.4 इंटू 10 कितना हो गया? 4 न्यूटन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई बता सकता है कहां तक फ्रिक्शन लड़ेगा? 5 न्यूटन तक. Yes. सही है. 5 न्यूटन के बाद में उसने हैंड ओवर कर दिया एफ के की तरफ और वो हमेशा 4 न्यूटन रहेगा. बराबर है क्या? Yeah. लुक केयरफुली. स्टेप 2 पर आते हैं. स्टेप 2 इज लाइक अ टेबल. टेबल क्या? एफ जो लगाते हो आप, फ्रिक्शन जो आता है, नेट फोर्स जो बनता है, स्टैटिक और काइनेटिक. ओके, ए नेट. एफ आपने जो लगाया स्टार्ट में, एफ व्हाट यू आर अप्लाइंग, लेट इट बी 0 न्यूटन. आपने लगाया 0. फ्रिक्शन मालूम है ना इधर आएगा ना. Yes. फ्रॉम ग्राउंड टू बॉडी आपने लगाया 0. फ्रिक्शन कितना रहेगा? 0. ऑटो एडजस्टिंग है 0 न्यूटन. एफ नेट कितना है? 0. कौन सा कैटेगरी? Static. ए नेट 0 है बिकॉज ए नेट का फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है. बराबर है क्या? हेलो. आपने लगाया 2. आपने लगाया 2. फ्रिक्शन कितना है? Mm, बिकॉज इट इज ऑटो एडजस्टिंग टिल 5 ना. yes. ये इसने भी दिया 2. एफ नेट कितना हो गया? 0. 0 कौन सा Newton. कैटेगरी? Static. ए नेट हो गया 0. 0. इट इज ऑटो एडजस्टिंग. इट इज ऑटो एडजस्टिंग. दिस ऑल इज ऑटो एडजस्टिंग. आपने लगाया 4. उसने कितना दिया? 4. बिकॉज ही हैज टू फाइट टिल 5. Till 5. हेलो, आर यू गेटिंग इट? Yeah. Yes. अरे जो पीछे किया ना वही तो है यार. ये तो खाली थोड़ा अच्छा बना दिया है. 5 न्यूटन. फाइव. आप भी 5, मैं भी 5. मैक्सिमम वैल्यू ऑफर करेगा ना वो. हेलो. Yes. F net is 0. Can I say this is the maximum value of static friction? Yes or no? Yeah. But it is which category? Static category only till now. Yes or no? तो आपने 5 दिया, इसने भी 5 दिया ना. नेट फोर्स तो 0 हो गया. तो नेट एक्सेलरेशन भी कितना हो गया बेटा? 0. Are you understanding my point? Yeah. This is the maximum value. What is this maximum value called as? FS max. This is Fs maximum. Can I say till here? This all is what? Static friction. That I know. It is auto adjusting. बराबर है क्या? अरे 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5. It all is auto adjusting category. बोलेगा अभी मेरा बर्दाश्त खत्म हो गया. बराबर है क्या? I cannot bear more now. मैंने पूरा मैक्सिमम जितना लगाना था फोर्स लगा दिया. बराबर है क्या? Yes. अब आपने यहाँ पर लगाया 5.00000001. बराबर क्या? Yes or no? Yeah. Can I say the stage has changed? It has crossed the boundary of static. Now it will come in which category?
Kinetic. 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 काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना अभी। Yes. तो भाई वो स्टेट चेंज हो चुका है, ये कितना एक्ट करेगा अभी? 4. 4 Newton. नेट फोर्स कितना बना? 0.00001. हाँ जो भी 0 पॉइंट कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 So बराबर है क्या? 1.001, right? हाँ 1.0 1.00 सॉरी 1.000 अप्रोक्सीमेटली 1 पकड़ लेते हैं। हाँ। अरे ये छोड़ो ना यार, ये सब है अप्रोक्सीमेटली व्हाट विल आई टेक? 1 yes Newton. or no? 1 Newton. Which category? Kinetic. So acceleration will also be 1 meter per second square because mass is also 1 ना? Yes. अरे F net by m है ना, F net is 1, mass is also 1, तो 1 upon 1 is 1, yes or no? हेलो, Yes. आपने दिया 6 न्यूटन, बोलो अब क्या होने वाला है? फ्रिक्शन कितना आएगा? 2 Newton. फ्रिक्शन कितना No, आएगा? 4 Newton. नेट फोर्स कितना है? Definite 2 ए नेट कितना है? meter per second. Kinetic. आपने दिया 8 न्यूटन, बोलो 4 Newton. आर यू गेटिंग माय कॉन्सेप्ट, यस और नो? Yes. ये हो गया हमारा फ्रिक्शन का सवाल। गेटिंग इट? तो कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो, एकदम इजी है, बराबर है ना? हाँ अच्छा कभी कभी है ना आपको पूछता है ग्राफ बनाओ, बड़ो एफ वर्सेस छोटो एफ का ग्राफ बनाओ, मेरी बात सुनो। मेक द ग्राफ ऑफ बड़ो एफ वर्सेस छोटो एफ। व्हाट इज छोटो एफ स्टैंड फॉर? फ्रिक्शन। कैन आई से आपने 0 दिया, उसने भी 0 दिया, आपने 2 दिया तो उसने कितना दिया? 2. अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्सेस चेंज कर देते हैं, इसको लिखते हैं छोटो एफ, उसको लिखते हैं बड़ो एफ, चलेगा ना? आपने 2 दिया, इसने भी, फ्रिक्शन ने भी कितना दिया? 2 दिया, बराबर। आपने 5 दिया, उसने भी कितना दिया? 5 Newton. Are you there with me? आपने Yes. 6 दिया, इसने कितना दिया? फ्रिक्शन वो ने 4. कितना दिया? 4 दिया। आपने 8 दिया, इसने कितना दिया? 4 is 4 दिया। Are you getting it? yeah ज्वाइन करते हैं सब पॉइंट्स को। आपने 2 दिया, इसने भी 2 दिया, आपने 5 दिया, इसने भी 5 दिया, तो पहले आपने 0 दिया, इसने भी 0 दिया, तो पहले ऐसे बनेगा, बराबर। फिर इसके बाद में क्या होगा? खड़क करके गिर जाएगा। तो इसके बाद में कौन सा स्टेज आ गया? स्टैटिक का स्टेज नहीं है ना अभी, अभी कौन सा स्टेज है? काइनेटिक। इसके बाद में आपने 5.001 दिया तो भी ये 4 आ गया, ये 4 रहेगा हमेशा। Are you understanding what am I telling? सर 5 पे गिर थोड़ी ना 4 मतलब 6 पे हुआ 5.0 5.9 5.00000000001 पे क्या हो जाएगा? 4 तो मतलब थोड़ा ज्यादा फोर्स है, तो ये पीक जो है वो स्ट्रेट नहीं, थोड़ा इधर होना चाहिए, बट दैट इज ऑल अंडरस्टूड। होगी 6 पे 4 नहीं होगा, थोड़ा सी ज्यादा होगा ना, 4 से 5 से, तो 4 हो जाएगा। यस और नो? yeah This is the graph which is asked in the examination. Okay, and this is which category? Static. This is which category? Kinetic. Can I say this is what category? Auto adjusting. समझ रहा है क्या? And this is which category? Constant. बराबर क्या? हेलो, अरे बोलो ना यार। I hope you all are getting it. कुछ इतना कुछ हार्ड नहीं है। Yes, sir. Perfect.
Now, two small concepts are left which I'll be dealing with. To be this is which value? FS max. Fs maximum. Okay, ma'am. This value is Fs maximum. यहां तक वो लड़ता रहेगा, बराबर. उसके बाद में बोलेगा भाई जाओ, जिधर जाना है जाओ, यू आर आउट ऑफ माय हैंड, नाउ हु विल हैंडल यू? Fk विल हैंडल यू, बराबर. Yeah. अब आगे दो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस समझ आएगा. एक टर्म है कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. मेरी बात सुनो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इसको डिनोट करते हैं लैम्बडा से. एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिनोट बाय द वर्ड लेटर लैम्बडा. व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? ध्यान दो, एक बॉडी है, बेटा इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? जमीन से जो आता है वो कैसे आएगा ना, वो बोल सकता हूं. सपोज फ्रिक्शन जो है इस बॉडी का पीछे है. सपोज ये बॉडी रिलेटिवली आगे चल रहा है, फ्रिक्शन पीछे है, या इंटेंशन सपोज फ्रिक्शन इधर है, बराबर है ना. एंड इट इज म्यू एन. ये मालूम है सबको. मे बी इट कैन बी म्यू एस एन, मे बी इट कैन बी म्यू के एन. यहाँ पर म्यू एन लेते हैं, बराबर है, बिकॉज मेरे को मालूम नहीं है कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है. हेलो, रुका हुआ है तो म्यू एस रहेगा, चल रहा है तो म्यू के रहेगा, बट मेरे को मालूम नहीं है, छोड़ो ना. यस और नो? अच्छा, which component is this man? And which component is this man? Can I say दोनों को मिलाकर जो फोर्स बनता है उसको क्या बोलते हैं? मैंने पहले लेक्चर में भी स्टार्ट में पढ़ाया था, उसको क्या बोलते हैं? नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, बराबर क्या? हेलो, क्या बोलते हैं भाई इसको? नेट कॉन्टैक्ट. जब भी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेगी ना आपको, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. हेलो, जब भी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे, वी हैव टू टेक कंसिडरेशन नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज फ्रिक्शन. दिस एंगल with the normal reaction, with the reaction net contact force is making with the normal reaction, इसको बोलते हैं angle of friction, lambda. इस एंगल को लैम्बडा बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में. गेटिंग इट? अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज tan लैम्बडा? जल्दी जल्दी, tan लैम्बडा क्या रहेगा? tan लैम्बडा Friction F upon N. event. F upon N. Yes. F is mu n by n. तो tan लैम्बडा क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा. स्टैटिक है तो म्यू एस, काइनेटिक है तो म्यू के, बराबर क्या? तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? tan inverse of mu. Angle of friction is 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 tan inverse of mu. याद करो. What is R का value? You know, parallelogram law से R भी निकाल सकते हैं. R will be under root of F square plus N square. But what is F? Mu n. तो mu n Mu का n स्क्वायर हो जाएगा mu square n square plus n square. कहना इसे n कॉमन निकाल लो बाहर, तो ये हो जाएगा n root of mu square plus 1 will be R, बराबर. Hello. Yes, sir. We have learned two formulas which are important over here. One is this, second is this. बोलो.
नोट करो, नोट करो, नोट करो। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या भाई? हेलो, Yes. Yes, sir. कुछ दम नहीं है यार इसमें, क्या है इसमें? है सिर्फ टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ रहे। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, मेरी बात सुनना। सृष्टि विल आंसर। सृष्टि, आर यू देयर? Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे हैं। इस टर्म का नाम इज एंगल ऑफ रिपोज। क्या है एंगल ऑफ रिपोज बाद में बताऊंगा, और हम लोग पहले पढ़ना शुरू करते हैं। सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, बोल दे थीटा, इधर एक मास रख रहे हैं। अच्छा, मेरे को मालूम है एमजी कहां पर एक्ट करता था? Vertically नीचे। down. ये मालूम है ना सबको? हेलो, डू यू नो इट और नॉट? Yeah. Yes. ये थीटा तो मालूम है ना, ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? एम जी Sin theta. साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगा? MG sin theta. नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, Towards the body. टुवर्ड्स द बॉडी। तो कैन आई से नॉर्मल रिएक्शन ये है। बराबर क्या? एंड आई नो दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। रेस्ट मतलब स्टैटिक है। स्टैटिक है मतलब अप इज डाउन, लेफ्ट इज राइट। हेलो, अरे भाई हेलो। Yes. Yes, sir. Yeah. कैन आई से एन विल बी एम जी कॉस थीटा। बैलेंस करना है ना। अच्छा, एम जी साइन थीटा अनबैलेंस्ड है, Yes. बट यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि ये रेस्ट पर है, इसका मतलब यहाँ पर एक इनविजिबल फोर्स आया। मतलब फोर्स का नाम क्या है? Static. स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत अच्छे बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑटो एडजस्टिंग वाला फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रहेगा? MG. जी Equal to MG. साइन थीटा। और ये कौन सा फोर्स है? एक बहुत अच्छा नाम दिया, क्या नाम है इसका? Static friction. Static. स्टैटिक फ्रिक्शन। देखा, सुनो, अब मजा आएगा, मजा आएगा। सुनो, अब मैंने स्लोप और बढ़ाया, स्लोप मैंने और बढ़ाया। मैंने ये जो इंक्लाइन प्लेन था उसका स्लोप बढ़ा दिया, मैंने कर दिया थीटा डैश। बराबर क्या? यहाँ पर मास है, कहना इसे वजन की तरह एक्ट करेगा, सबको मालूम है। mg, ये क्या रहेगा? चलो चलो, हाँ टाइम नहीं है, फटाफट बोलो। MG cos theta. MG cos theta dash. ये क्या रहेगा? MG MG sin sin theta theta dash. dash. नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? Opposite to MG cos theta. Perpendicular to the surface. बट आई नो नाउ आल्सो द बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब which category it is into? Static category। Yeah. मतलब Yes. अप इज डाउन, लेफ्ट इज राइट। अप इज डाउन मतलब n क्या हो जाएगा? MG MG cos cos theta theta dash. एंड यहाँ पर रेस्ट पर है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन आया फिर से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन नाउ? MG sin theta dash. पहले कितना था? MG sin MG sin theta. अब कितना हो गया? MG sin. MG sin theta MG dash. sin theta चेंज हुआ कि सेम है? change हो चेंज हो गया, डैश हो गया ना यार। साइन थीटा डैश बढ़ गया ना, तो साइन थीटा बढ़ा, साइन थीटा बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ा। दैट मींस दिस इज स्टैटिक अगेन, बट इट इज ऑटो एडजस्टिंग इटसेल्फ। अरे भाई Yes. बोलो, ये एफ डैश हो गया भाई। ये एफ नहीं है, ये एफ से अलग है ना, ये एन डैश है। आर यू देयर विद मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग?
बिकॉज थीटा Yes. थीटा डैश हो गया है तो एन एन डैश हो गया, एफ एफ डैश हो गया, बट बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब वो ऑटो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। ये बोलेगा तुम लगाओ 4 मैं भी लगाओ 4, ये आप लगाओ 5 मैं भी लगाओ 5। और मैंने इंक्लाइन प्लेन और बढ़ाया, सॉरी क्या कर रहे हो सर, एट एन एंगल अल्फा, अल्फा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज पे? अच्छा पहले मास बता दो, मास कहाँ है, वेट कहाँ पर है, जल्दी जल्दी बोलो यार। vertically downwards. डाउनवर्ड तो ये क्या हो जाएगा, mg cos theta. mg sin थीटा alpha नहीं, cos mg alpha. cos alpha। और ये कितना हो जाएगा, ये सब mg स्टैंडर्ड sin रिजल्ट्स alpha. है, mg sin alpha। Can I say the block is at rest, but it is on the verge of slipping? Are you there? कुछ समझ रहे क्या? Yeah. Hello. Yeah. Whenever it is on the verge of moving, friction अपना पूरा जोर लगाता है। हेलो, उस जोर का नाम क्या होता है? एफएस मैक्सिमम। FS maximum. मतलब ये तो एफएस है, ये सब एफएस है, बट यहां पर कितना लग रहा है अभी, बराबर क्या? yes हेलो हेलो हेलो, यस और नो? अरे एन कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, पहले बोलो एन कितना हो जाएगा। एन तो जैसे का वैसे mg ही cos mg cos अल्फा। एफएस मैक्सिमम कितना हो जाएगा? mg sin alpha नहीं, एफएस मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला था, म्यू एस एन। यही तो mu गलती s करते हैं, mg sin अल्फा के बराबर है, बट एफएस मैक्सिमम का एक्चुअल वैल्यू क्या है, mg sin अल्फा है क्या? नहीं, mu s उसका mg actual sin alpha formula into क्या है? n. म्यू एस इनटू एन ना। हेलो, एफएस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, म्यू एस इनटू एन। व्हाट इज एन? mg cos But since the body is at rest, can I say mg sin alpha नीचे is equal to fs maximum ऊपर, that is mu s mg cos alpha? Are you agreeing with me? yes अरे नीचे is equal to ऊपर ना भाई, हेलो। Are you there Yeah. with me? ये और ये सेम होना चाहिए ना भाई, बॉडी रेस्ट पर है अभी, चल रहा थोड़ी है। दैट मीन नीचे का फोर्स और ऊपर का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स सेम होना चाहिए, यस और नो? Yeah. yes दैट मीन्स mg sin अल्फा नीचे इज इक्वल टू म्यू एस mg cos अल्फा ऊपर। mg mg उड़ गया, tan अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या रहेगा, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या रहेगा, tan अल्फा विल बिकम म्यू एस। बोलो mu बोलो, yes tan अल्फा विल बिकम व्हाट सर, व्हाट सर? OS. म्यू एस। तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan Tan inverse inverse of mu s. यही मांगता था। इसको क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ angle of रिपोज। सर ये एंगल पे क्या होता है, आप इतना क्यों चर्चा कर रहे हो? ये एंगल पे द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ इट्स मोशन एंड द फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज अप्लाइड इज म्यू एस इनटू एन व्हिच इज म्यू एस mg cos अल्फा, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट अल्फा विल बिकम tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। बोलो yes यस और नो? Hmm. अच्छा पीछे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया था, तो तुम लोग भूल Tan जाते हो inverse of यार। mu. tan इनवर्स ऑफ म्यू, म्यू मतलब म्यू एस भी हो सकता है, म्यू के भी हो सकता है, सही है क्या? yes अल्फा का वैल्यू कितना आया था? tan inverse of mu. mu अच्छा अगर ये म्यू एस होता, अगर ये म्यू एस होता तो कैन आई से न्यूमेरिकली लैम्बडा और अल्फा का वैल्यू सेम हो जाता, yes अगर ये म्यू एस होता है, यस और नो? अरे यार बोलो ना, इफ म्यू एस होता, yes स्टैटिक होता, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाता। ये याद रखना एज अ फैक्ट था। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, खाली नंबर सेम आएगा। मतलब इसका वैल्यू अगर 10 है तो उसका वैल्यू भी कितना रहेगा, 10 डिग्री रहेगा, बराबर है क्या? yes एज अ फैक्ट पूछा जाता है कि न्यूमेरिकली लैम्बडा का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू सेम होता है। आर यू गेटिंग इट?
अरे यार कुछ बोलो ना. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज sir. इज दैट एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट विच द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ इट्स मोशन. At that moment, Fs is Fs maximum, which is mu s mg cos alpha, which will become equal to mg sin alpha. So alpha will become tan inverse of mu s. बोलो हाँ ना, yes or no? Yes. Yes. अच्छा ये दोनों क्या थे? ये दोनों बेचारे ऑटो एडजस्टिंग थे. ये getting it or not? हाँ. Till wherever it is auto adjusting till here. अरे भाई बोलो. हाँ हाँ. Yes. अब लास्ट कैटेगरी, लास्ट बस. ओके 2 मिनट और. कैन आई से ये थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है. क्या होगा? Body will move. बॉडी विल स्लिप डाउनवर्ड्स. बराबर है क्या? हेलो. आई नो इट इज स्लीपिंग. सर ये कौन सा फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे? अरे एफ एस मैक्सिमम तो हार गया भाई. F के. एफ के आएगा. व्हाट इज एफ के का फॉर्मूला? mu k into n. व्हाट इज एन? mg व्हाट cos इज एन का theta. वैल्यू? बराबर क्या? हेलो विच कैटेगरी? काइनेटिक स्टैटिक? Kinetic. कैन आई से नेट फोर्स इधर बनेगा? काइनेटिक कैटेगरी. कोई बता सकता है नेट फोर्स कितना बना? बड़ो फोर्स माइनस छोटो फोर्स. हु इज द बड़ो फोर्स? mg sin theta. mg sin theta. व्हाट इज द छोटो फोर्स? पीछे वाला है ना भाई. mu k mg cos theta. हेलो. Yes. अरे यार ऐसे ऐसे रिलेटिव मोशन नीचे की तरफ है ना. तो एक्सेलरेशन कितना बनेगा नेट? That is mg sin theta minus mu k mg cos theta by m. m उड़ा दो थ्रू आउट. बोलो एक्सेलरेशन कितना हो गया नेट नीचे? Are you getting my point? Yes. ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो नीचे फिसलना शुरू करेगा. नीचे फिसलेगा मतलब क्या? मतलब काइनेटिक कैटेगरी में आ गया ना भाई. तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया. काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू एन, बट एन आई नो ऑन द इंक्लाइन प्लेन इज स्टैंडर्ड इज mg cos थीटा. रट्टा मार लो सीधा. n इज mg cos थीटा. हेलो. हाँ. ये तो रट्टा मारना है ना भाई. ये और ये तो रट्टा ही मारना है. n इज mg cos थीटा. आगे वाला फोर्स इज mg sin थीटा. कितनी बार कर रहा है? यस और नो? This is all for today. Anyone has some doubt regarding anything? So can you go to the previous slide for 1 second? Yeah, 1 second. बराबर. Yeah, sir. ये कॉपी कर लिया. सब कॉपी कर लिया. कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं सर. तो इसको पढ़ लेना. डीसी पढ़ने में से रीडिंग कर लेना आप लोग. बाकी सिनॉप्सिस मैंने पूरा दे दिया. ठीक है. I'll upload the lecture also. किसको डाउट हो तो फिर से देख लेना. चलो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.